Hello everyone, I welcome all of you to my YouTube channel. This is Vimonti and you're watching Mystic Sorceress. So today we will be doing a Pile tarot reading, and the topic of this reading is how you can manifest a harmonious connection with this particular person. This person could be your specific person, or you might be in a connection with this person, but you both are going through a rocky patches maybe, and the relationship is not very harmonious. But if you have a desire to have a healthy, harmonious relationship with this particular person, this particular reading will help you so that you can heal your relationship, right? Which is very much possible. Any relationship we can heal if you are willing to work on this relationship, right? So some people check compatibility, but what I believe that we need to work and create compatibility, right? Not everybody is compatible, right? And we need to do the work and make the make each other compatible for each other. Okay, so yeah, if you're willing, this reading is for you. So here are two crystals, right? uh, Pile 1 and pile 2, right? You can pause the video, focus on your breathing. Once you feel relaxed, pick one crystal, whichever crystal is pulling your attention. Okay. Now, there is another technique. If you are struggling, okay, if you cannot pick a right crystal, or if you doubt your intuition, I can give you another option. That is, if you are born between 1 to 15 of any month, you can select pile A, right? And if your date of birth comes from 15th to 31st of any month, okay, between this date, then this particular crystal is for you. So if you took birth on any date from 1st of any month till 14th of any month, okay, this is pile number A. And if your date of birth comes between 15th to 31st of any month, you can choose pile B. Okay. So because I have heard this thing that many people do not trust their intuition, they feel confused which one to pick. So the date of birth is given here, right? And based on your date of birth, you can pick piles, right? 1 to 14, pile A. 15th to 31st, pile B. Okay. So if you have selected your pile, uh, you can check the description. The timestamp will be given. You can click on your timestamp and watch the entire video. Do not forget to like, share, and subscribe to my channel, and hit the bell icon, because if I upload video, you will get notified. And comment below if you have resonated with this particular reading. And always remember, this is a timeless reading, so anytime you find this video will give a message uh, to you, and pick what resonates and leave the rest, because always remember, this is a collective reading, so it is not going to resonate with everybody, right? um, and if you need personal sessions, personal services, personal reading, healing sessions, you can reach out. The number is given in the description, right? So we will proceed with uh, pile A's reading. Hello pile A. So जिन लोगों ने ही इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है? पाइल ए, बहुत ध्यान से सुनना हाँ इस रीडिंग को, ठीक है? और इफ पॉसिबल टेक अ पेन पेपर एंड नोट डाउन, बिकॉज एवरी पॉइंट आई विल टेल यू, इट विल गिव यू एन इंसाइट कि आप कौन से एरिया में काम कर सकते हो खुद के ऊपर. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप अपने पर्टिकुलर पर्सन के साथ स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप में, राइट? और कोई एक इंसान है
जिसके साथ आपको फील होता है कि देयर इज एन अनफिनिश्ड बिजनेस एंड यू वांट टू हैव अ हार्मोनियस कनेक्शन विद दिस पर्सन, इट इज वेरी मच पॉसिबल। नो मैटर कौन से एस्ट्रोलॉजर ने या कोई टैरो रीडर ने आपको बोला था कि इट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, but I feel that if you are here, there is a urge within you to heal this connection, right? That is why you are watching this video. Okay, अगर आप ऑलरेडी किसी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या आपको स्ट्रगल हो रहा है, तब भी आपके लिए वैलिड होगा। अगर आप कोई रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, तभी आपके लिए वैलिड है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। इट इज नॉट अबाउट व्हाट द अदर पर्सन एक्चुअली फील्स फॉर यू, it is more about how you can heal your connection, right? And what you need to know uh, about this connection so that you can come into a harmonious union with this person, you can have a fulfilling relationship। देखिए, किसी इंसान को सिर्फ वापस पाना या पहले जैसा रिलेशनशिप को करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, राइट? क्या इंपॉर्टेंट होता है कि एक रिलेशनशिप में हार्मोनियस कनेक्शन हो, एक इक्वल गिव एंड टेक हो, एक पीसफुल एनवायरनमेंट आप क्रिएट करो, राइट? Sometimes people want to get back a person just to feel good about themselves, right? Just to feel that it is an achievement, just to feel that it is an victory because you left me, now I have to win you so that I feel good about myself। अगर ऐसा सिचुएशन आप ऐसे एटीट्यूड के साथ आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तो मैं आपको बोलूंगी दोबारा आप चीजों को थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए अपने अंदर, ठीक है? क्योंकि ऐसे एटीट्यूड के साथ तो प्रॉब्लम आपको फिर से होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर लेटिंग योर ईगो control your judgment in a relationship। And always remember, relationship actually based on, always relationship can thrive if the building block is made of love। if you are playing mind games or just because your partner did something wrong with you, then see, you will end up feeling exhausted in this connection or in any connection, right? So focus on your healing, and this reading will help you understand where you need to heal, right? So that you can have a fulfilling connection with your partner। ठीक है, तो पाइल ए, आप देख लीजिए स्टोरी, जब मैं बताऊंगी आपको समझ में आएगा कि आपकी सिचुएशन के साथ जा रहा है कि नहीं। ठीक है, बेस्ड ऑन दैट यू डिसाइड वेदर you resonate with the guidance and what inner work you need to do। आपको खुद के ऊपर क्या काम करने की जरूरत है so that you can heal your connection, right? So pile A, what you need to know is, I can see that pile A, many of you are waiting for someone। okay, आप लोगों में से बहुत लोग किसी के लिए वेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि आप आप लोग सोच रहे हो कि आप कोई पर्सन आपके दिमाग में हो सकता है, या आप कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, कुछ आप चाहते हो उस पर्सन के साथ मिलना, एक बार बात करना। ठीक है, कहीं ना कहीं पाइले आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में मुझे ये भी लग रहा है इट कुड बी रिलेटेड टू सम टू ऑप्शंस, राइट? मे बी यू आर स्टक बिटवीन टू चॉइसेस। आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जहां पे आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू, और मे बी योर you know that your soul is not aligning with this person। ठीक है, आपके हार्ट आपका हार्ट कहीं पे कहीं और आपको गाइड कर रहा है। ओके, राइट? एंड फॉर मेनी ऑफ यू आई फील कि कोई एक पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आप अभी कनेक्शन में नहीं हो, या रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट में अभी आप नहीं हो। कम्युनिकेशन का आप चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप उनसे रीच आउट करना, पर कहीं ना कहीं शायद करियर में आप बहुत ज्यादा फंसे हुए हो। आई फील दैट मेनी ऑफ यू कुड बी वेरी वर्कोहॉलिक, बट और आप लोग शायद अपने आप को करियर में इतना ज्यादा बिजी रखते हो सो दैट यू डू नॉट मिस दैट पर्सन, और ये इंसान की बातें आपके दिमाग में ना आए। ठीक है, राइट? तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने काम को चुन लिया है ताकि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका एक टेक्निक है टू शिफ्ट योर फोकस, राइट?
एंड फॉर मेनी ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ये भी है, मैं जो बोल रही हूँ कि दो पर्सन के बीच में डिसीजंस लेने की जरूरत है, किसी के साथ आप अभी हो, जिसके साथ आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज एक्चुअली नॉट फॉर यू, सम काइंड ऑफ डिससैटिस्फैक्शन वॉइड इज देयर, एक एम्प्टीनेस आप लोगों के अंदर है, ठीक है, जो कोई भी चीज से फुलफिल नहीं हो रहा है, और आप लोगों को एक अर्ज फील हो रहा है, कोई एक पर्सन है जिससे आपको कम्युनिकेट करना है, या यू आर वेटिंग फॉर देम टू रीच आउट, or you're still thinking, right, what to choose. Okay, now I feel कि पहले पास्ट में भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत सोचा है इस कनेक्शन के बारे में, आप बहुत देर से सोच भी रहे हो, ठीक है, बहुत देर से आप लोग पास्ट में भी सोच रहे हो कि क्या इस पर्सन के साथ मेरा कैसा कंपैटिबिलिटी था, क्या बहुत बुरा था, नो, इतना भी बुरा नहीं था, ऐसे सोच है आप लोगों के अंदर कि उतना भी बुरा नहीं था, और एक बहुत ज्यादा कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी है, रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है, कि आप सोच रहे थे कि कितना वक्त, जितना भी वक्त आपने उसके साथ बिताया है, व्हाट वाज रियली अबाउट, कैसा उस इंसान के साथ जब भी आपने टाइम स्पेंड करा है तो आपको कैसा फील होता था, ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक ऐसा फील हो रहा है कि एक्चुअली वो कनेक्शन उतना भी बुरा नहीं था, राइट, एंड आपने बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर पर्सन से सीखा है, उस रिलेशनशिप से सीखा है, और उस रिलेशनशिप में या उस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज्यादा पेशेंस भी रखा है, मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों को बस लग रहा है कि पास में चीजें अच्छी भी थी, और बहुत पोटेंशियल भी था कि वो कुछ अच्छा हो सके, पर कहीं ना कहीं कोई एक इंसान फेथ नहीं रख पाया, ये हो सकता है आप, ये हो सकता है ये इंसान, कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, और कुछ लोगों के बीच में, कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी लग रहा है कि आपने उतना ज्यादा इस कनेक्शन पे फोकस नहीं करा, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये कनेक्शन आपके करियर के बीच में आ जा रहा है, आप लोगों को लग रहा था कि मुझे अभी पैसे इनकम करने में फोकस करना है, कहीं ना कहीं अगर मेरा फोकस शिफ्ट हो जा रहा है इस पर्सन पे, तो इट इज इफेक्टिंग माई करियर, एंड मेरा फोकस शिफ्ट हो जा रहा है, और मेरे पास टाइम नहीं था, तो ऐसा कुछ करके आप लोगों ने सोचा कि द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इज टू फोकस ऑन माई सेल्फ, बिकॉज मनी इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज मनी इज इम्पोर्टेंट, कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबका सेम स्टोरी नहीं है, राइट, नाउ फाइल ए, लेट्स सी कि आपके पर्सन, जो भी ये पर्सन है, इनका क्या करेंट फीलिंग्स है, ओके, तो आपके जो भी पर्सन है ये, आपके जो भी ये पर्सन है, कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ होगा शायद, यू लेफ्ट दैट पर्सन, और थिंग्स डिड नॉट वर्क बिटवीन यू एंड देम, और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ एक डिसएग्रीमेंट हुआ था, या कुछ एक पेनफुल इंसिडेंट हुआ होगा पास्ट में, जो इस इंसान के दिल में अभी तक है, राइट, और इस इंसान ने आपके कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी बिहेवियर हो सकता है, उसके ऊपर बेस्ड करके इसने खुद का एक परसेप्शन बना लिया, राइट, ये परसेप्शन क्या है, परसेप्शन ये है, दिस पर्सन फील्स दैट यू नेवर लव देम, और ये इंसान को अभी ये लग रहा है, देखो क्या होता है ना, हमारा परसेप्शन क्या होता है, इट माइट नॉट बी द ट्रूथ, ठीक है, हमारा परसेप्शन ये होता है, जरूरी नहीं कि वो सच है, कभी कभी किसी के एक्शन से हम परसीव कर लेते हैं, और कोई एक मैसेज पिक कर लेते हैं और उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो उस इंसान को लग रहा है कि whatever how you behaved in the past, or whatever action you took in the past, this person feels that आपने इसके साथ ऑनेस्टी नहीं रखा, आपने इसको सच नहीं बताया, ओके, इनको लगता है यू डिसीव देम, आपने इनसे इनको सच नहीं बताया, इनके साथ आपने जस्टिस नहीं करा, आप बहुत अनफेयर थे इनके साथ, ठीक है, आपने इनकी तरफ की कहानी नहीं समझा कि वो कितने पानी में थे, वो कितने अकेले थे, ओके, ये इंसान को इस इंसान को लग रहा था कि वो बहुत अकेले थे जिस टाइम पे
आपने, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने कुछ कुछ झगड़ा हुआ था, डिसएग्रीमेंट हुआ था, यू और यू लेफ्ट दिस पर्सन विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन, और ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों के बीच में शायद बात बंद हो गया था। तो इस इंसान को लगता है कि यू एक्टेड सेल्फिश, और आप आप इनको सच बता के जा सकते थे, पर आपने इनके साथ डिसऑनेस्टी दिखाई, डिसीव किया इनको कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आपने इनको पूरा सच नहीं बताया। ठीक है, और ये इंसान ने कहीं ना कहीं ऐसा फील करा है कि ओके, ये इस इंसान ने फील करा है कि दे आर नॉट अ गुड मैच फॉर यू। ओके, इस इंसान को लगा लगा कि आपके पास ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस थे, या बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है आपके लाइफ में, एंड दे आर नॉट अ गुड मैच फॉर यू। उनको थोड़ा सा इंफीरियर भी फील होता है, उनको लगता है कि आपके लाइफ में इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यू ऑलरेडी हैव मेनी ऑप्शंस, एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव। उनको लगता है उनको प्रूव करने की जरूरत है आपका अटेंशन और आपसे अफेक्शन पाने के लिए। दे नीड टू प्रूव देमसेल्फ एंड दे समटाइम्स फील थ्रेटन्ड, एंड दिस पर्सन फील्स एग्जॉस्टेड। उनको ये इंसान बहुत एग्जॉस्टेड भी है। उनको लगता है कि उनको अप्रिशिएट नहीं करा गया, उनको लगता है कि उनको वैल्यू नहीं करा गया। उनको लगा इस रिलेशनशिप में कि वो अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, वन साइडेड कंट्रीब्यूशन है और दूसरे साइड से नहीं है। देखिए, ये उनको लगा, ठीक है। अभी आप बोल सकते हो कि नहीं, ऐसे कैसे उनको लगा, पर ये उनको लगा। फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं होता है। समटाइम्स दे फीलिंग्स का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, राइट। कभी कभी आप जिस तरीके से एफर्ट देते हो, सामने वाले को किसी और तरीके से प्यार चाहिए होता है, राइट। राइट। तो वो एक पोएट्री है ना, वो एक पोएट्री है, राइट। अगर आप लोग सुनते हो पोएट्री, वहां पे एक पोएट्री है। मैं उस लेडी का नाम याद नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी। वो एक पोएट्री है कि जरूरी नहीं आपका जो लवर है वो आपको आप ही के जैसा प्यार करे। यस, मैं आप लोगों को बता दूंगी कौन सी पोइट्री है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, मैं लिंक ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो ये उनके साथ ना वही कहानी है। आपने शायद किसी और तरीके से प्यार दिखाया उनको, पर इनके लिए प्यार दिखाने का कुछ और मतलब था। आई फील कि इट इज अबाउट द प्रॉब्लम वाज रिलेटेड टू लव लैंग्वेज। लव लैंग्वेज क्या होता है कि जब दोनों इंसान का लव लैंग्वेज अलग हो ना, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। कि आपको लगता है कि मैं तो इतना उसको, आई डिड सो मच एफर्ट टू मेक हर रियलाइज और टू मेक हिम रियलाइज दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस पर्सन इज। बट इस इंसान का जब लव लैंग्वेज अलग है, तो आपके उस एफर्ट के साथ इसका जो है लैंग्वेज मैच नहीं करता, तो प्रॉब्लम है। लेट्स से योर पार्टनर हैज अ लव लैंग्वेज की एक्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर देना, आपके लिए खाना बना देना, ठीक है। आपका मान लीजिए सामान कोई है जो आपको मार्केट से लाना है, वो ला देना, आपकी लाइफ को इजी करना, ये एक्ट ऑफ सर्विस हो सकता है। आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज है। दिस इज हाउ दे एक्सप्रेस देयर लव फॉर यू, ठीक है। नाउ आपका अगर लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, मतलब जब कोई इंसान आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, देन ओनली यू फील लव। नाउ देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। आपका पार्टनर कहीं और तरीके से आपको प्यार समझाने की कोशिश कर रहा है कि दे लव यू बाय प्रोवाइडिंग एक्ट ऑफ सर्विस, पर आपको तभी प्यार फील होता है जब कोई इंसान अपने बिजी शेड्यूल से आपके लिए टाइम निकाल के आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ठीक है। तो मुझे लगता है आप दोनों के केस में यही हुआ। आप कोई और तरीके से प्यार समझा रहे थे,
इस इंसान का लव लैंग्वेज कोई और है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ है। दे परसीव दैट दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, दे परसीव दैट आपने इनके साथ, आप ट्रूथफुल नहीं थे, आप नहीं समझे कि ये कितने अकेले हैं, एंड यू लेफ्ट दैट पर्सन अलोन। दिस पर्सन एक्चुअली फाइटिंग देयर ओन बैटल अकेले। इस पर्सन को लगता है कि मैं रिलेशनशिप में हमेशा अकेले ही स्ट्रगल कर रहा था या कर रही थी, एंड यू आर नॉट देयर, मे बी इमोशनली। Okay. So now, what is the current situation between you two? Let's say, let's see, Eight of Cups. अच्छा, Eight of Cups. तो I feel कि पाइल ए, आपके केस में ऐसा हो सकता है पाइल ए कि अगर आप लोगों ने इस इंसान से मूव ऑन करा, क्योंकि आप लाइफ में खुश नहीं थे, ठीक है, या आप सेटिस्फाइड नहीं थे, या आपको लगा कि मेरा करियर इज माय प्रायोरिटी, मुझे करियर में फोकस करना है, मुझे पीस चाहिए। पर आफ्टर समटाइम्स आई फील मेनी ऑफ यू हैव रियलाइज्ड कि ये सारे, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को एक मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी मिला है अपने करियर में, पर आप लोगों को बस इसको अचीव करने के बाद आप लोगों को फील हो रहा है कि मुझे तो ये सारी चीजें सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा है। आई फील मेनी ऑफ यू, क्योंकि टू ऑफ वंस का कार्ड है, आप लोगों ने कुछ अलग ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करे होंगे कुछ लोगों के केस में, पर आप लोगों को बस ये रियलाइज हुआ है कि नो, स्टिल आई एम फीलिंग द सेम एम्प्टीनेस, दिस थिंग कैन नॉट मेक मी फील हैप्पी। तो एक वॉइड आप लोगों के अंदर काम कर रहा है, डिससैटिस्फैक्शन, अनहैप्पीनेस, राइट? यू अंडरस्टूड कि ये कुछ भी चीज आपके वॉइड को फिल अप नहीं कर सकता। बहुत लोगों के केस में आई रिकमेंड वॉच द मूवी लव आजकल, द फर्स्ट वन, ठीक है, जिसमें दीपिका पादुकोण एंड what Saif Ali Khan थे, right? Many of you will understand the journey and the love story between you and this person. ये मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ओके? इट इज अ मूवी बाय इम्तियाज अली, लव आजकल पार्ट वन, फर्स्ट वाला मूवी देखना, फर्स्ट वर्जन, यू विल अंडरस्टैंड योर स्ट्रगल, आप लोग कौन से स्ट्रगल से जा रहे हो। सी, एक्चुअली सैफ अली खान उस मूवी में ना, ही एक्सप्लोर अनदर गर्ल, he actually chase his dream career, and only exploring other options, and only after achieving his dream career he understood that nothing is making sense. There is a constant feeling of emptiness, dissatisfaction, कुछ खालीपन सा, डिस्कनेक्शन सा, जैसे वो खुद से ही डिस्कनेक्टेड है। उसे लगा था कि वो इस जो भी इंसान के साथ, जो भी इंसान था, मतलब दीपिका पादुकोण से वो दूर चला गया है, ही मूव्ड ऑन, बट ही रियलाइज्ड कि मैं मूव ऑन कर गया हूँ, कि मैं और भी ज्यादा उसके, वो मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा आ गई है, या ऐसा। तो जस्ट आफ्टर एक्सप्लोरिंग ऑल अदर ऑप्शंस ही रियलाइज्ड nothing can make him happy, right? तो बहुत लोगों के केस में ऐसा सिचुएशन मुझे लग रहा है, राइट? तो मैं एक तो मैं बोल रही हूँ मूवी रिकमेंड करा है मैंने, क्योंकि आई हैव सीन इम्तियाज अली इस मूवी, एंड देयर आर मेनी मूवीज जो आपको लाइफ के बारे में, आपकी खुद की इमोशंस के बारे में, जब आपको कुछ समझ नहीं आता है ना, तो वो आपको समझा देता है, कि आपको लगेगा कि या दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, या दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, right? And see, this movie has a message for you. Pile, many of you will get some kind of guidance, right? Okay. So, and मैं कोशिश करूंगी, अगर उस पर्टिकुलर पोइट्री का लिंक भी मुझे मिल जाए, तो आई ऐड, उस पोइट्री को जरूर सुनिएगा, वो भी आपको समझाने में हेल्प करेगी कि कभी कभी कम्युनिकेशन गैप कितना एक रिलेशनशिप को सैबोटैज कर देता है, कि आप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, आपको लगता है कि दिस पर्सन डजंट डोंट वैल्यू मी, दैट पर्सन फील्स दे डोंट वैल्यू मी, पर डीप डाउन दे बोथ फील फॉर ईच अदर, एंड ये इतना पैथेटिक होता है ना, ऐसे एंडिंग कनेक्शन में बहुत पैथेटिक है। पर मैंने ये भी देखा है, ऐसे केसेस में यूनिवर्स गिव्स यू अनदर चांस टू हील एंड रीयूनाइट। ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं, क्योंकि ये डीप डाउन सोल की एक अर्ज थी एक दूसरे के साथ होना, पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से दे पार्टेड देयर वेज। Sometimes we part our ways just to
meet with that person maybe at some other point. ठीक है, तो नाउ पाइल ए देखते हैं कि what is your intention. Okay, so पाइल ए what is your intention? पाइल आई फील कि आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में ना आप लोगों थोड़ा सा सरेंडर कर दे रहे हो इस कनेक्शन को, राइट? आई फील कि मेनी ऑफ यू आर सरेंडरिंग दिस कनेक्शन फॉर नाउ. आप लोगों को लग रहा है कि जो भी हुआ है हो गया है, पर अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो लेट मी सरेंडर, राइट? बिकॉज मेनी ऑफ यू आई फील कि यू आर स्केर्ड. आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा डर भी है, रिजेक्शन का डर है, क्योंकि रिजेक्शन का भी डर है, और दोनों दो कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशन आप लोगों के दिमाग में चल रहा है. ठीक है, ठीक है. वन इज ड्रिवन बाय योर फियर एंड अनदर इज ड्रिवन बाय योर इंट्यूशन. आपका दिल कुछ बोल रहा है और दिमाग कुछ और. ठीक है, एक जगह पे आपका एक फियर बेस्ड वॉइस है जो आपको हर एक नेगेटिव चीजें बता रहा है इस कनेक्शन के बारे में, और एक आपका दिल कह रहा है कि यू नो यू नीड यू शुड रीच आउट टू दैट पर्सन. ठीक है, तो आप लोगों ने एक डुअलिटी में आप लोग हो. ठीक है, दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट. एंड आई फील पाइल ए आप लोगों ने इसीलिए फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों ने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के ऊपर कि देखा जाएगा, अगर होना होगा तो हो जाएगा, राइट? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट एनीथिंग, राइट? क्लैरिटी नहीं समझ में आ रहा है मुझे. और क्योंकि बहुत लोगों के इसमें मुझे लगता है दो ऑप्शंस भी है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो. एक पर्टिकुलर ऑप्शन है, आपका दिमाग बोल रहा है कि यू नीड टू चूज दिस पर्सन. योर लॉजिकल माइंड इज टेलिंग यू बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज सेफ, but your heart is guiding you to that person. आपका हाथ, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि यू लव हिम, यू दे यू नीड टू गो देयर. ठीक है, एक एक आप जहां पे भी हो पाए, बट आई फील कि आप वहां पे हो नहीं पूरी तरीके से. दिल और दिमाग के बीच में आपका एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. तो आई फील कि इस फाइल के बहुत सारे लोग एक स्पिरिचुअलिटी के तरफ थोड़ा सा टर्न ले सकते हैं. ठीक है, और एक पुल फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, क्या सुनना है, दिमाग का कि दिल का? ठीक है, एंड आई क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स एक आपको पुल फील हो सकता है कि द आंसर जो भी नहीं मिल रहा आपको वहां, और एक आप लोगों के केस में हो सकता है कि कोई एक कुछ प्लेसेस हो जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस हो जहाँ पे आप आंसर ढूंढने के लिए थोड़ा सा अकेले जाना चाहते हो. ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है बहुत लोगों के केस में. हो सकता है चार धाम यात्रा हो, या हो सकता है कुछ टेम्पल, कोई राइट, कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लेसेस जहाँ पे आपको अकेले में शांति में आंसर मिले. बहुत लोगों के लिए कावर, राइट, कुछ रिलीजियस प्लेसेस के टूवर्ड्स आपको एक पुल फील हो रहा है कि आई नीड टू गो देयर टू गेट माय आंसर्स. ठीक है, कि व्हाट माय सोल वांट्स एक्चुअली, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है. होता है ऐसे सिचुएशंस, राइट? क्योंकि दिमाग और दिल कभी कभी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, बट पाइले ये तो पक्का है कि जहां पे अभी आप हो, यू आर नॉट हैप्पी. इतना आपको समझ में आया कि आप अभी आपके लाइफ के चॉइसेस से यू आर नॉट हैप्पी. हैप्पी इन द सेंस सब कुछ है पर कुछ नहीं है, ऐसा होना. यू हैव द लग्जरी, यू हैव द पीपल अराउंड यू, पैसे भी आपके पास इनफ है, बट द खालीपन वो आपको जैसे निगल रहा है ऐसा. ओके, in the upcoming future I see a possibility to heal this connection or heal your uh, love life. ठीक है, an opportunity to heal your love life, an opportunity of new beginning. जिस इंसान के बारे में इंक्वायर कर रहे हो
उस इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग होने का अपॉर्चुनिटी है, इस रिलेशनशिप का हील होने का अपॉर्चुनिटी है, राइट? एंड एक पीसफुल कम्युनिकेशन होने का अपॉर्चुनिटी है। ओके, ओके, वाओ। नाउ, अपॉर्चुनिटी होना मतलब पॉसिबिलिटी है। ओके, अगर बहुत लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि पॉसिबल है कि नहीं कुछ चीज होना, द कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट यस, थिंग्स विल चेंज। एनर्जी एक आपके अलाइनमेंट में आने वाली है, एंड इट विल बी अ divine blessing. That means universe will give you an opportunity to heal this connection, right? To communicate this person, to express your true feelings with to this person, right? And I feel many of you will realize पहले कि आप दोनों के बीच में एक अनकंडीशनल अफेक्शन है। यू यू विल जस्ट एक्नॉलेज इट। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोग एक ये एक्नॉलेज करोगे कि नो मैटर व्हाट हैपेंड, यू पीपल नो ईच अदर। मैं बोल रही हूँ ना, लव आजकल देखना, प्लीज देखना। पहले अगर आपको ये वीडियो जब भी मिल रहा है, देखना लव आजकल। इट इज माई इंट्यूशन इज टेलिंग मी कि आपको आंसर मिलेंगे लव आजकल मूवी से। फर्स्ट वाला देखना, सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला वर्जन। ओके, आपको समझ में आएगा ये कनेक्शन क्या है एक्चुअली, क्यों ये इंसान सब कुछ मिलने के बाद भी वो इंसान के लिए क्रेविंग फील हो रहा है आपको। ठीक है, इट इज योर सोल कॉलिंग। पहले इज योर सोल इज it is your soul urge to meet them, to reach out. हम अपने आप से थोड़ी भाग सकते, कितना भागोगे, ज्यादा दिन नहीं भाग सकते। एनीवे, सो मतलब दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड फ्रॉम माय लाइफ, दैट हम अपने आप से नहीं भाग सकते। ठीक है, तो आप कभी कभी हमारा दिमाग हमें डराता है। ठीक है, हमें लगता है कि हम लॉजिकल हो रहे हैं। कभी कभी सी माइंड का ना एक डुअलिटी वाला नेचर है। ठीक है, कभी कभी माइंड आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है ना, कभी कभी माइंड आपको बेफजूल का डरा देता है कि ये मत करो, सो यू डू नॉट गो देयर, यू रिमेम्बर लास्ट टाइम व्हाट हैपेंड। बट लास्ट टाइम क्या हुआ था, उस वो जरूरी नहीं है ना कि इस बार भी वो चीज हो सकता है लास्ट टाइम यू ऑल्सो मेड सम मिस्टेक, they also made some mistake, but हो सकता है after a few time you people realized each other's problems, each other flaws। क्योंकि मैंने जब शुरुआती टाइम पे ही बोला था कि compatibility are not built, uh, I mean are not built natural, I mean what am I telling you, sorry। So many people feel that जोड़ी ऊपर बनती है वो अलग चीज है, but sometimes compatibility you need to build। okay, you both need to build compatibility, right? अगर आपको लग रहा था कि हम लोग compatible नहीं है, compatible कोई है ऐसा नहीं होता। वो सब कहा कहने की बात है कि 36 के 36 कुल मिल गए हैं, राइट? वो बस कहने की बात है। जब आप दो इंसान एक साथ रहते हो, दे यू विल, आप खुद से पूछो ना, छोड़, forget about this person, forget about this person, right? You ask yourself, आपका आपके सिबलिंग के साथ, अगर आपका कोई सिबलिंग है, क्या आप compatible हो? No, you accepted them, you accepted them with their flaws, with their lows and highs, right? और क्योंकि आप बड़े होते हो तो आपको समझ में आता है, क्या आपका कंपैटिबिलिटी आपको लगता है 100% आपके पेरेंट के साथ है, आपके हर एक दोस्त के साथ है? नो। अगर आपका कोई दोस्त आपके बराबर का है ना, तो मैं बोलूंगी आई बेट यू कि कंपैटिबल तो आप लोग होंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो इंसान आपको काउंटर करेगा। आपको जिसके साथ कंपैटिबिलिटी लग रही है ना, वो इंसान का चांसेस ये है कि वो आपको कंफर्ट जोन देता है, वो आपके गलत को भी गलत ज्यादा काउंटर नहीं करता। हम उसके साथ ही कंपैटिबिलिटी सोचते हैं। क्यों सोचते हैं हम? क्योंकि जो इंसान, जो कनेक्शन हमारे दिमाग को काउंटर नहीं कर रहा है, जो हमारे हाँ में हाँ और ना में ना मिला रहा है, तो वी फील दिस पर्सन इज कंपैटिबल, बट दे नेवर हेल्प यू ग्रो, दे नेवर हेल्प यू ग्रो, राइट? सो कंपैटिबिलिटी क्रिएट करा जाता है। और रिलेशनशिप में ना, जो बोलते हैं ना कि मैं जैसा हूँ वैसा मुझे एक्सेप्ट करेगा वो इंसान, ये बेकार की बातें हैं। आप रिलेशनशिप में एक्चुअली काम करते हो। ठीक है, क्या आपने खुद को अपने हिसाब से एक्सेप्ट करा है? यू आस्क योरसेल्फ, डू यू थिंक यू हैव एक्सेप्टेड योरसेल्फ? देयर आर वेरी लेस पीपल हु हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड देमसेल्फ, ट्रूली।
एक्सेप्टेड देमसेल्फ मतलब वो अंदर जो है वो बाहर भी वो है, वो बंद कमरे में जैसे रहते हैं वो बाहर भी वही वो वैसे ही रहते हैं, समाज के सामने वो अलग मास्क नहीं पहनते, दे डू नॉट ट्राई टू फिट इन. इफ यू आर ट्राइंग टू फिट इन टू द सोसाइटी, मार्क माई वर्ड, आपने खुद को ही खुद एक्सेप्ट नहीं करा एंड यू एक्सपेक्ट अदर पर्सन विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर. हम रिलेशनशिप में काम करते हैं भैया, ये सच है. पता नहीं कोई कोई क्यों नहीं बोलता ये शेर और शायरी और पोएट्री और वट एवर द थिंग इज, कहीं ना कहीं मूवीज से हमने सीखा है कि द पर्सन विल एक्सेप्ट यू द वे यू आर. बेकार की बात है. इवन इफ द पर्सन हैज एक्सेप्टेड यू द वे यू आर इनिशियली, आफ्टर दैट यू नीड टू पुट वर्क. ठीक है, रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी बनाया जाता है खुद के ऊपर काम करके. ठीक है, खुद के ऊपर काम करके कंपैटिबल करा जाता है रिलेशनशिप को. और ये ऑटो पायलट मोड में रिलेशनशिप खूबसूरत नहीं होती. वो सब कहानियों में है, 36 के 36 गुण मिल गए हैं. 36 के 36 गुण मिलने से भी आपके रिलेशनशिप में चैलेंजेस रहते हैं एंड आपको उस पर काम करना पड़ता है. Right? So pile A, I feel many of you had some kind of unrealistic expectation, but I feel you people are uh, maturing right now. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है या आएगा. You are in the process. Okay? इसीलिए ये जो dissatisfaction आपको समझ में आ रहा है कि ये सब नहीं है जो मेरा सोल चाहता है. हो सकता है योर करंट कनेक्शन, करंट फ्रेंड्स, योर मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, कुछ भी आपको वो फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहा है. गुड. अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, ये है बात, ये हो गई हमारी मोरल स्टोरी. अगर आपको लग रहा है यही ही आपके लाइफ की सिचुएशंस हैं, राइट, नाउ हम ये देखेंगे कि क्या करने की जरूरत है. ठीक है, पहले नाउ यहाँ पे पहले बहुत क्लियर मैसेज है आप लोगों के लिए. ठीक है, एक तो आप बहुत ज्यादा जजमेंटल मत बनिए पहले. ठीक है, आपका क्या है ना कि आपका जो थॉट है वो आपका जो माइंड है वो आपको आपके इमोशन को कंट्रोल कर रहा है. हमारा इमोशन जब हमारे माइंड को कंट्रोल करता है वो भी सही नहीं है, और जब हमारा माइंड हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है वो भी सही सही नहीं है. राइट, देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन आवर माइंड एंड आवर हार्ट. ठीक है, तो पहले एक तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आपको पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, सबसे पहली बात तो ये. ठीक है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि आई स्ट्रांगली फील इस फाइल के बहुत सारे लोगों ने अपने इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं था, या आपका कोई इमोशनल वुंडिंग थी जिसके जो आप फेस नहीं करना चाहते थे, जो आप हील नहीं आपने करा, तो इसीलिए यू डिड सम काइंड ऑफ इम्पल्सिव डिसीजन इन द पास्ट. ठीक है, सो करेंटली पाइल ए, यू नीड टू हैव पेशेंस विथ योरसेल्फ. आपको खुद के साथ एक पीस बनाने की जरूरत है. आपको अपने ऊपर पहले हील करने की जरूरत है, अपने पैटर्न्स को, अपने रिलेशनशिप पैटर्न्स को, आपके बिहेवियर को. ठीक है, कि आप कौन सी जगह पे रिलेशनशिप में इम्पेशेंट हो जाते हो और इम्पल्सिव चॉइसेस लेते हो. ठीक है, राइट. और आप लोगों में से बहुत लोगों के केस में आप लोगों का रूट चक्र हैज टू बी बैलेंस्ड. ठीक है, इफ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, फाइल ए. ठीक है, आई फील you people will get benefited if you start doing chakra healing meditation. ठीक है, अगर चक्रा हीलिंग मेडिटेशन आप कर सकते हो, ठीक है, या आप अगर किसी के साथ काम करना चाहते हो कोई हीलर के साथ, इफ यू कैन डू सो, इट विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, यू स्टार्ट विद चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, बिकॉज आप लोगों के केस में मुझे बहुत ये लग रहा है कि ये आपको बहुत हेल्प करेगी. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो मुझे आ ही रहा है, पर चक्रा हीलिंग इज द बेसिक थिंग. हमारे प्रॉब्लम्स मेनली चक्रा इम्बैलेंस की वजह से ही अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो आपका कोई भी एक सेल्फ हीलिंग के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू बी एट पीस विथ योर सेल्फ. जब आप खुद के साथ पीस में रहना सीख जाओगे ना, आप किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को, अगर आपने पास में इस पर्सन को ब्लेम करा है कि यू आर नॉट एट पीस बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, यू डिड समथिंग रॉन्ग. किसी के वजह से आपका पीस
हड़प जाए, ये उसको आपने अगर दोष दिया है या सिचुएशन को दिया है, आपको समझने की जरूरत है। इट टॉक्स अबाउट योर लैक ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी। आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं नहीं था कि आपने किसी और को जिम्मेदार ठहराया आपकी इंटरनल बैलेंस के लिए, पीस के लिए। तो यू नीड टू फोकस ऑन हैविंग दैट इक्विलिब्रियम विद इन। ये आप कैसे भी करो, आपको कैसे भी अपने अंदर एक इमोशनल बैलेंस लेके आना है, ठीक है। बहुत लोग ताइची प्रैक्टिस करते हैं, राइट, ताइची इज ऑल्सो एन टेक्निक। ये चीजें करते हैं, बहुत लोग हीलिंग करते हैं, ठीक है। बहुत लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, मेनी पीपल डू विपासना, ठीक है। गो वट एवर रेजोनेट्स विथ यू, पर यू नीड टू ब्रिंग योर सेल्फ एट पीस। पहले आपको अपने आप को एक इक्विलिब्रियम वाली स्टेट में रखना है कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो आपकी इमोशंस का, ठीक है। एंड यू विल नॉट मेक दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन और एनी अदर सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस, फॉर योर ओन पीस। आपको अपने इमोशन को रेगुलेट करना सीखना है पहले, बिकॉज इस ग्रुप के लोगों के इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम है। आप अपने लोगों से बहुत ज्यादा, आप पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू कंफर्ट। इट इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले आपकी इमोशन को रेगुलेट करना सीखिए आप, राइट। ये कोई भी प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो इनमें से, जो आपकी इमोशन को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा, माइंडफुलनेस लेके आएगा। एक दूसरा ये है पाइल ए, आपके घर वालों के साथ रिलेशनशिप को हील करना। ये घर का कार्ड बता रहा है, राइट। इट टॉक्स अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेंबर्स। इट टॉक्स अबाउट योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली मेंबर्स, राइट। सो पाइल ए, आई फील कि आप लोगों के केस में जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके पेरेंट हो सकता है, आपके मदर हो सकते हैं, राइट। अगर आपका उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसा है, आपको लग रहा है कि दे डोंट अंडरस्टैंड मी, आई डोंट अंडरस्टैंड देम, दे यू नीड टू अंडरस्टैंड द डीपर मैसेज व्हाई दिस पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, ठीक है। आपका इन आपके घर वालों के साथ रिलेशनशिप में बैलेंस लाने की जरूरत है, ठीक है। यू डू नॉट ट्राई टू चेंज देम एंड डू नॉट अलाउ देम टू चेंज योर लाइफ चॉइसेस। ना आप उनको फिक्स करने की कोशिश करो, ना आप उनके ओपिनियन को अपने ऊपर हावी होने दो, ठीक है। आपका एक बाउंड्री का लेसन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है पाइले। आप अगर बहुत ज्यादा ये सोचते हो कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, इफ आई डू दैट, इफ आई दैट मीन यू आर अलाउइंग देम टू इन्फ्लुएंस योर लाइफ चॉइसेस। डू नॉट डू दैट, ठीक है। और ना ही आप बाउंड्री क्रॉस करो। हैव अ हेल्दी बाउंड्री बिटवीन यू एंड योर फैमिली मेंबर्स, एंड एनर्जेटिक हीलिंग कीजिए आप आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, ठीक है। अगर सामने आप बोल नहीं सकते, ठीक है, यू कैन राइट अ 21 days forgiveness letter to your family members, ठीक है। लेटर आपको सबकॉन्शियस हीलिंग में बहुत हेल्प करता है, आपको उनको देने की जरूरत नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि आपको मैं बोल रहा हूँ आप उनको दो, नहीं नहीं नहीं, राइट। आप जिनको भी मानते हो, इट कुड बी योर गॉड, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ superpower, right? Any kind of power, any kind of universal energy. आप आप एंजल्स को मानते हो, किसी को भी मानते हो, आप उनको कॉल कीजिए आपके प्रेयर में, एंड आप 21 days यू राइट लेटर टू योर फैमिली मेंबर्स, मेंशनिंग ईच एंड एवरी मेंबर। अगर फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, ठीक है, कि यू राइट अ लेटर दैट आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू, राइट। Even if you did not understand me, even if you hurt me, right, I'm willing to forgive you, ठीक है। ऐसे forgiveness letter आप अपने हर एक फैमिली मेंबर्स के लिए आप लिख सकते हो फॉर 21 days, यू डू इट। एंड बेस्ट, अगर आप आके एंजल्स पे बिलीव करते हो तो एंजल्स को कॉल सकते हो, दे वर्क ब्यूटीफुली। आप अपने जो भी गॉड्स को मानते हो उनको आप उनके सामने आप इस लेटर को 21 days जो आप लेटर लिखोगे, ठीक है, करने के बाद हर एक लेटर को आप जो भी वो आपके भगवान है या आपका मंदिर है वहां पे आप रखो, ठीक है। एंड 21 days आप एक फॉरगिवनेस
रिचुअल आप बोल सकते हो इसको, कि अगर आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप का कोई भी नैरेशन है जो कहीं ना कहीं आपके फैमिली से इन्फ्लुएंस है, आपको लगा कि मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम था, मेरे घर में ना हो, और कहीं ना कहीं आपने इस परसेप्शन आपके दिमाग में है, ठीक है, या कोई एक रिजेंटमेंट है, कोई एक गुस्सा है आपका आपके फैमिली के कोई मेंबर के प्रति, हो सकता है आपके मम्मी के प्रति, हो सकता है आपके फादर के टूवर्ड्स, तो उस चीज को रिलीज आप फॉरगिवनेस से कर सकते हो. यू फॉरगिव दैट पर्सन, नॉट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ यू. जब तक आप अपने फैमिली मेंबर्स को, या अगर आपका बचपन में कोई ऐसा डिसफंक्शनल रिलेशनशिप या मैरिज आपने देखा है अपने मम्मी पापा के बीच में, उस मेमोरी को आप फॉरगिव नहीं करते, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो पहले. ठीक है, फॉर योर सेक ऑफ वेल बीइंग यू नीड टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस. ठीक है, आप क्या करोगे, एक तो इस इंडिविजुअल पर्सन का नाम लेके आप लेटर राइट करोगे, आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू ऑल द एक्सपीरियंसेस, जैसा आपको फील हुआ उस पर्सन ने आपको बचपन से ऐसा फील कराया, या आपको फील हुआ, कोई कराता नहीं, आपको फील होता है. वो इंसान तो खुद ही वुंडेड है, उसको पता ही नहीं है जो जिस काइंड ऑफ बिहेवियर वो कर रहा है वो सही नहीं है, वो इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है क्योंकि वो खुद वुंडेड है. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपको ये लिखना है कि आई फॉरगिव यू for all the pain I experienced from your side. I forgive you because I want to move forward. I forgive you for all those moments I felt unheard by you. I forgive you for all those moments I felt rejected by you. I forgive you for all those moments when I feel unworthy because you mistreated me. ठीक है, आप अपने मम्मी के लिए लिख सकते हो, पापा के लिए लिख सकते हो, जो भी एक्सपीरियंस आपने करा है इंडिविजुअल, जो भी आपके दिल से आ रहा है लिखो, और फॉरगिव आई फॉरगिव यू लिखो. ठीक है, जैसा भी आपको फील हुआ, राइट, आप बोलो. और ये भी आपको मेमोरी भी अगर है पास्ट का, जैसे आपके मम्मी पापा के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, झगड़ा देखा है आपने, सेपरेशन देखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग देखा है, या आपके कोई फैमिली में और किसी लोगों का आपने डिसफंक्शनल मैरिज देखा है, वट एवर इट इज, राइट एवरी सिचुएशन and again ask for forgiveness, that I forgive myself because I have been carrying this pain, all this negative uh, example of marriage or failure of marriage, and I am affecting my own mental health, right. I ask for forgiveness, खुद से भी forgiveness मांगो इस 21 days में, कि क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा नेगेटिव में फोकस करते हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे अंदर एक पार्ट है जिसको डरा रहे हैं, या बहुत ज्यादा ये फोकस कर रहे हो कि मेरे घर में ये शादी नहीं टिकी, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डरा रहे हो. जरूरी नहीं है कि वो गड्ढे में गिरे तो आप भी गड्ढे में गिरोगे, हो भी सकता है ना, क्योंकि आपने गड्ढे में देखा कि वो लोग गिर रहे हैं तो आपने सीख लिया कि मुझे गड्ढे में नहीं गिरना. पर कहीं ना कहीं आपने अपने आप को पेन या सफरिंग दिया है, क्योंकि आपने उसी एग्जाम्पल को लेके आप चल रहे हो. शायद हो सकता है आपने इस पर्सन को भी इसीलिए आपने इस रिलेशनशिप में काम ही नहीं करा क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो डिसफंक्शनल मैरिज था, एंड अननोइंगली आपके फियर की वजह से यू रिजेक्टेड दैट पर्सन और यू लेफ्ट दैट पर्सन अलोन. सो कहीं ना कहीं आपका ही एक पार्ट होता है जिस जो आपके ऊपर गुस्सा रहता है, तो आपको आप अपने आप से फॉरगिवनेस मांगो. क्या आई फॉरगिव माई सेल्फ दैट आई डिड नॉट फॉलो माई हार्ट. कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि हम जिस इंसान को पसंद करते हैं, हमने हमारे अंदर करेज ही नहीं है कि हम उस इंसान के लिए फाइट करें या उस कनेक्शन में हम स्टे करें, क्योंकि हम बहुत डरे हुए रहते हैं. तो हमारे अंदर एक पार्ट होता है जो हमारे हमारे खिलाफ काम करता है. तो खुद से फॉरगिवनेस मांगो कि आई एम सॉरी कि आई डिड नॉट फॉलो माई हार्ट. आई एम सॉरी दैट आई फोकस्ड ऑन ऑल द डिसफंक्शनल मैरिज. आई एम सॉरी दैट मैंने अपने आप को डराया है. आई एम सॉरी दैट मैंने अनवर्दी फील कराया अपने आप को कि कि मैं प्यार के लायक नहीं. तो ऐसे फॉरगिवनेस लेटर आप लिखो. ठीक है, आप खुद के लिए लिखो, आप अपने घर वालों के लिए भी लिखो, क्योंकि आपके घर से ये चीज
आ रहा है, जो भी आपका फैमिली रिलेटेड डिसफंक्शनल, मैरिज रिलेटेड या रिलेशनशिप में या शादी में आपने प्रॉब्लम देखा है अपने घर वालों के बीच में या किसी के बीच में, वो सारे मेमोरीज को रिकॉल करके फॉरगिवनेस मांगो, लिखो पेपर पे, 21 दिन ये करो, जो भी आता है जैसा भी आता है, ठीक है। लिखने के बाद वो पेपर को आप अपने जो भी इष्ट देवता है जिसको भी आप मानते हो, राइट, उसके सामने आप रख दीजिए, प्रेयर कीजिए कि मुझे हेल्प करो आप अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए। आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, कि मैंने जो भी किया मुझे नहीं पता था, मैंने अपने डर से किया, पर नाउ मैं अभी आपके ऊपर सरेंडर करता हूँ, यू हेल्प मी हील दिस कनेक्शन, यू हेल्प मी हील माई ओन वुंडिंग, ताकि मैं खुद के अंदर प्यार फील कर पाऊं, खुद के अंदर कंप्लीट फील करूं, ठीक है। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर पाइल, ये प्यार, लव डिटैचमेंट से होता है, ठीक है। और ये कब होगा, जब आप खुद के अंदर कंप्लीट फील करोगे। अगर आप हमेशा ये डिपेंड करोगे किसी और पर्सन वो आएगा और वो आपके लाइफ में जादू ऐड करेगा और आपको आपके दिल में शांति लेके आएगा, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल। क्योंकि जिस इंसान के खुद के दिल में शांति नहीं है, वो कहीं पे भी जाए उसको शांति मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये आप करो पहले, एंड आई डिड माई बेस्ट टू गाइड यू। एंड अगर आपको पर्सनल हीलिंग सेशंस की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन रीच आउट इन माई डिस्क्रिप्शन, इन माई व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड आपके इस पर्टिकुलर कनेक्शन में या जो भी पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी है, राइट। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि मैंने ये बहुत केसेस में देखा है, अगर दो इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अलग होते हैं ना, पर उन दोनों के अंदर एक अर्ज था एक होने का, यूनिवर्स गिव्स देम अपॉर्चुनिटी, समटाइम्स यूनिवर्स कंस्पायर देम सो दे कम बैक टू ईच अदर, राइट। बट हाँ, यूनिवर्स कंस्पायर तो करेगा, पर आप अगर चाहते हो कि हारमोनियस कनेक्शन हो, तो यू फोकस ऑन योर हीलिंग। आप खुद से प्यार करना सीखो, खुद के अंदर पीस बनाना सीखो, ठीक है। आप एक एनवायरनमेंट अपने अंदर क्रिएट करो। आप ये उम्मीद मत करो कि वो आके मेरा घर संवार देगा या संवार देगी, मेरे लाइफ जिंदगी खूबसूरत कर देगी। यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट प्रायर, राइट। सो ये बहुत लोग शायद हम लोगों को सोसाइटी नहीं सिखाती है कि आपको आपको अगर आप अगर गार्डन बना लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली तितली आपके पास आएंगी ही। सो यू क्रिएट दैट स्पेस, you create that heaven within you, right? Then see how magically your relationship evolves, and I can see a strong possibility, but you need to do the healing part. आपका खुद का हीलिंग, आपको खुद को फॉरगिव करना है, आपको अपने घर वालों को फॉरगिव करना है। जहां से आपने रिलेशनशिप के ये जो एग्जांपल्स पिक किए हैं, आपने उनके सफरिंग को, उनके पेन को आपने इंटरनलाइज कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आपने खुद के साथ भी बुरा किया है, कहीं ना कहीं उस कर्स को आप अननोइंगली कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, राइट। तो आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, 21 डेज तक जरूर करें। पर्सनल सेशंस के लिए रीच कर सकते हो आप मुझ तक भी, और किसी और के साथ भी अगर आपको काम करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट। अभी हम पाइल बी की रीडिंग करेंगे। हेलो पाइल बी, तो अगर आपने इस पर्टिकुलर क्रिस्टल को पिक करा था तो ये आपकी रीडिंग है। तो देखते हैं पाइल बी कि what you need to know if you want to manifest a harmonious connection with your specific person, ठीक है। तो पाइल बी, मैं जहाँ पे देख पा रही हूँ इस पर्टिकुलर कनेक्शन में, पास्ट में क्या हुआ था कि पास्ट में शायद ये पर्सन या आप बहुत ही इनडिसाइसिव थे, या यू बोथ वाज नॉट श्योर। हो सकता है आप दोनों श्योर नहीं थे, या एक पर्सन आपको लगा कि द पर्सन इज नॉट श्योर, या हो सकता है ये इंसान बहुत इन एंड आउट थे आपके कनेक्शन में, ठीक है। या हो सकता है आप थे, कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट या सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज था, ठीक है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं हो पाया, या आपको लगा कि ये इंसान मैच्योर नहीं है उतना, कि आप या तैयार नहीं है अभी, रिस्पॉन्सिबल उतना लगा नहीं आपको कि वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट निभा पाएगा आपके साथ। कोई एक इंसान यहाँ पे था, हो सकता है ये पर्सन, हो सकता है आप, या आप दोनों
इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में कुछ इमेच्योरिटी पास्ट में थी, ठीक है? अ, जो मुझे दिख रहा है। कुछ हो सकता है कि बहुत लोगों के केस में ये जो पाइल जिन लोगों ने भी चूज़ करा है, इनके केस में हो सकता है कि आप दोनों सेम पेज में नहीं थे। कभी आपको लगा कि ये इंसान इंटरेस्टेड है, कभी आपको लगा कि ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है? इन एंड आउट, एक मिक्स काइंड ऑफ फीलिंग्स का होना, ठीक है? कि समझ नहीं पाना कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस रिलेशनशिप में। ओके? सो अभी मुझे दिख रहा है कि पाइल बी, सॉरी, पाइल बी की व्हाट इज योर व्हाट आर योर फीलिंग्स टुवर्ड दिस पर्सन। आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? आई फील वेरी मच कि आपको आप पास्ट में जब आप लोगों के लाइफ में इस कनेक्शन से रिलेटेड क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि कुछ मिक्स सिग्नल मिल रहा था या आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं कुछ डर भी था, राइट, कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, राइट? पर अभी आई फील कि मेनी ऑफ यू गॉट अ क्लैरिटी अबाउट दिस कनेक्शन। यू पीपल नाउ वेरी मच डिसाइसिव। अगर पास में इनडिसाइसिव थे तो अभी डिसाइसिव हो कि क्या चाहिए आपको, राइट? क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई है अबाउट दिस कनेक्शन, अबाउट दिस पर्सन। एंड अभी आई फील कि आप लोगों में से बहुत लोग, यू वांट, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुआ अगर है आप लोगों के लाइफ में, या आप लोग अभी नहीं मिल रहे हो, तो आई फील कि मेनी ऑफ यू वांट टू हील दिस कनेक्शन। आप लोगों को रियूनाइट होना है, और ऑफ कोर्स इसलिए आप ये कनेक्शन देख रहे हो। आप लोगों को फिर से मिलना है, फिर से ट्राई करने की आप लोगों के अंदर एक डिजायर मुझे दिख रहा है। आई फील यू वांट टू मीट दिस पर्सन अगेन, यू वांट टू, you want certain some kind of union, right? कुछ एक रियूनियन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके दिल में कहीं ना कहीं है। ओके, एंड आई ऑल्सो फील पाइल भी, आप लोगों को जो क्लैरिटी पास में नहीं मिली थी वो आपको अभी मिल गया है कि क्या आप चाहते हो इस कनेक्शन से, और ये इंसान के लिए आप क्या एक्चुअल में फील करते हो सकता है आप लोगों में से आप लोगों के बीच में एज गैप हो, ठीक है? पाइल बी, आई फील कि हो सकता है कि आप इनसे यंगर हो, जो भी पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, या आप एल्डर हो सकते हो इनसे, कोई एज गैप है, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन जिसके बारे में आप इनक्वायर कर रहे हो, ये पर्सन आपसे उम्र में छोटा है, या आप इनसे उम्र में छोटे हो सकते हो, ठीक है? एक एज गैप बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, ठीक है? एंड आई ऑल्सो फील पाइल भी, आप लोग पुराने मेमोरीज बहुत ज्यादा रिविजिट कर रहे हो, ठीक है? आप पुराने जो अच्छे बिताए हुए टाइम है इस इंसान के बारे में आप बहुत ज्यादा रिविजिट कर रहे हो, ठीक है? और वही मेमोरीज आपके दिल और दिमाग में बहुत बार आ रही है। एंड एक कम्युनिकेशन, इस पर्टिकुलर ग्रुप एक कम्युनिकेशन करना चाहता है इस इंसान से, एक हार्मोनियस रियूनियन आप लोग चाहते हो कि फिर से मिले, फिर से सॉरी आई एम सो सॉरी यार, फिर से मिले, और फिर से वो पुराने मेमोरीज को ताज़ा करे, या पुराने जो प्लेसेस थे जहाँ पे हम लोग एक साथ घूमते थे, वहाँ पे फिर से जाते हैं। हो सकता है कोई कैफ़े, हो सकता है कोई प्लेस है, हो सकता है कोई शहर है, जहाँ से आप लोगों की ये जो भी दोस्ती है, जो भी कनेक्शन है, उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? तो कहीं न कहीं एक डिज़ायर हो रहा है कि हम फिर से जाएँगे राइड पे, फिर से घूमेंगे एक साथ, ठीक है? एंड फिर से शुरुआत करने का एक डिज़ायर, फ्रेश स्टार्ट करने का एक डिज़ायर, ये फ्लावर्स से भी मुझे लग रहा है कि देखिए ये फ्लावर्स देयर आर सो फ्रेश, राइट? सो एक फ्रेश से स्टार्ट करने का एक डिजायर है कि व्हाटएवर हैपेंड इन द पास्ट, बट आई नाउ वांट टू रीस्टार्ट दिस कनेक्शन। फिर से अच्छे मेमोरीज क्रिएट करना है जो पास्ट में हमारे बीच में था, ठीक है? एक रीइग्नाइट करने का एक डिजायर, ठीक है? कहीं ना कहीं यू आर मिसिंग दैट पर्सन, मे बी मेनी ऑफ यू, इसलिए बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हो आप लोग। आप लोग याद करो कितना ज्यादा फन आप लोग करते थे एक दूसरे के साथ, राइट? आप लोग इस इंसान के साथ जिसके बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, इस इंसान के साथ बहुत ज्यादा होमली फील होता है आप लोगों को। शायद हो सकता है कि यू फील लाइक अ दिस पर्सन गिव्स यू एन स्पेस जहाँ पे आप बच्चे बन पाओ। ओके, यू कैन बिकम अ चाइल्ड
एक ऐसा अफेक्शन, एक ऐसा अनकंडीशनल केयर, लव दिस पर्सन ऑफर्स यू, दे गिव यू अ सेफ प्लेस. हम्म. बहुत लोगों के केस में आई मुझे बस ये लगा कि स्टोरी टेलिंग हो सकता है, ये इंसान आपको स्टोरीज, कहानी बताते थे, या दे यूज्ड टू टेल यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज. वेरी, बहुत अलग है. क्यों स्टोरी? अच्छा, ओके. हो सकता है आप लोगों का मेमोरी हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टोरी बोलते थे, या स्टोरी टेलिंग जैसा वो आपको समझाते थे कोई बात को. अगर किसी कोई बात को आपको समझाना है, जैसे स्टोरीज के थ्रू आपको समझाते थे. पता है ये हुआ था वहां पे ना, एक ऐसा था, ऐसी कहानी थी, ऐसा ये था. बहुत लोग होते हैं ना, कहानी बता बता के दे टेल यू अ स्टोरी. तो हो सकता है ये इंसान आपको कहीं ना कहीं स्टोरी बताते थे, या कहानी सुनाते थे. हम्म. कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आप लोग बहुत एक साथ मूवीज देखते थे, थिएटर, यू पीपल यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट, और मे बी ये जो भी इंसान है, ये आपको अच्छे अच्छे मूवीज रिकमेंड करते थे, और उनका मूवी का टेस्ट बहुत अच्छा था, सिनेमा का टेस्ट बहुत अच्छा था, और दैट पर्सन हैज अ वेरी गुड टेस्ट ऑफ सिनेमा. तो आप, हो सकता है आप दोनों जाते थे मूवी देखने. आई फील कि दोनों एक साथ मूवी थिएटर में जाते थे, पॉपकॉर्न्स खाते थे, यू पीपल यूज्ड टू एंजॉय इवन ऑफ द मोमेंट ऑफ साइलेंस विद ईच अदर, साथ में पिक्चर्स देखना. हम्म. ओके. हो सकता है आपने इस इंसान के लिए कभी पोएट्री लिखी है. पोएट्री लिखी है, हो सकता है, या हम्म, या ये इंसान ने आपके लिए कभी कोई पोएट्री लिखा था, right? Something related to painting. Yeah, painting. Okay, could be for many of you, सबके लिए नहीं पर कुछ लोगों के लिए. ठीक है, देखिए what resonates with your situation. कुछ लोगों के केस मुझे लगता था कि इस इंसान का जो प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका था, कभी आपने शायद इस इंसान के साथ, जब भी आप थे साथ में, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी एक जाग जाती थी, या इस इंसान को इंसान के अंदर एक क्रिएटिविटी अनलॉक कर पाते थे आप. ठीक है. हम्म. राइटिंग, पोएट्री हो सकता है आप लिखते थे, या ये लिखते थे, या गाना लिखना, सॉन्ग लिखना, आपके लिए या इनके लिए शेर और शायरी लिखना, कुछ कुछ लोगों के लिए. आई फील लाइक, राइट? टेक व्हाट रेजोनेट्स. ओके. हम्म. ओके. नाउ नेक्स्ट. अच्छा, हो सकता है ये जो पर्सन है ना आपका, ये पर्सन का हो सकता है होम डेकोर बहुत अच्छा लगता था उनको, प्लांटिंग करना, या घर जो है फेंगशुई के हिसाब से डेकोरेट करना, प्लांट्स लगाना, या फूलों से डेकोरेट करना. इस इंसान का हो सकता है कि ये इनको ये कभी आपके लिए शायद डेट उन्होंने ऑर्गेनाइज करा होगा, या आपने ऑर्गेनाइज करा होगा, जहाँ पे इनको थोड़ा सा होम डेकोर, कैंडल्स, फ्लावर्स, ये छोटे छोटे चीज जो होता है ना, कैनपी, अलग अलग डेकोरेशंस उनको बहुत अच्छा लगता है. एक थोड़ा सा या डेकोरेटिव थिंग, मे बी योर पर्सन लाइक्स अ लॉट. या कभी अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने अगर डिनर डेट करा है, या कुछ भी, तो ये पर्सन ना बहुत कटलरी को लेके भी बहुत शौकीन थे, कि इफ वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ वाइन डेट, ओके, जहाँ पे वी वी विल एंजॉय, तो वाइन के लिए अलग ग्लासेस का होना. दिस पर्सन इज सो पर्टिकुलर, एक शौकीन होना होता है ना, कि ये इंसान का थोड़ा सा ये नेचर भी है. ठीक है. कुछ लोगों के केस में मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान एक टाइम पे तो बहुत मेसी है, और एक टाइम पे बहुत ज्यादा शौकीन हो जाता है. जब 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 ये पर्सन सोच लेते हैं कि मुझे डेकोरेट करना है, तो सब चाहिए उनको, और कभी वो एकदम मेसी रहते हैं, तो बिल्कुल ही मेसी रहते हैं. ठीक है. राइट. हम्म. वाह. इस इंसान को हो सकता है फ्लावर्स बहुत पसंद है. इन्होंने शायद बात बात में आपको कहीं कभी कहा होगा कि डेट में या कभी मिलने गए थे, फ्लावर्स लेना है, या ऐसा कुछ. राइट. लिलीज, या रोजेस.
या वेरी स्पेसिफिक है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। पर ये मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली ये इस ग्रुप के बहुत सारे लोगों के केस में कि हो सकता है आप हो सकते हो बहुत शौकीन, या ये पर्सन हो सकता है जिनको होम डेकोर का बहुत शौक है, अच्छे कैंडल्स, फ्लावर्स, ना अच्छे ग्लासेस, अगर वाइन पीनी है तो वाइन के ग्लासेस पर्टिकुलरली, अगर शैम्पेन पीना है तो शैम्पेन ग्लासेस, द पर्सन यूज्ड टू गो टू होम डेकोर प्लेसेस लाइक IKEA और अदर प्लेसेस जहाँ पे होम डेकोर के सामान मिलते हैं, वहां से द पर्सन यूज्ड टू शॉप, राइट? या कैंडल होल्डर्स जो होते हैं अच्छे अच्छे, राइट? लाइट्स का लगाना, अच्छे येलो लाइट्स, अपने लाइट से अपने रूम को डेकोरेट करना, ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है, हो सकता है आप भी हो, ठीक है? तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ठीक है? सो नेक्स्ट इज पाइल बी। हो सकता है पाइल आपको बहुत याद भी आ रहा है इस इंसान के साथ, अगर आपने कभी डेट पे गए थे आप, मे बी यू पीपल आर मेमोराइजिंग दोस थिंग्स, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है आप लोगों को कि we had amazing time we spent with each other. Mm. Okay, so the next is pile B. देखता है ये इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए, oh similar feelings है ये इंसान, this person also feels the same way, they consider you a very good friend, इनको लगता है आप आपके साथ इनका कुछ सोल कनेक्शन है, दे फील तुम्हारे साथ तो कुछ पुराना है ऐसा, ओके? एंड दे जस्ट फील दैट दे नो यू इन एंड आउट, ये इंसान आपको इन एंड आउट, अंदर से बाहर जानता है, और ये इंसान को ये भी फील होता है कि इट इज अ डिवाइन कनेक्शन, राइट? एंड इज आप सोलमेट बोल सकते हो, वट एवर इट इज, ये पर्सन यही फील करता है, और ये इंसान फील करता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनके ग्रोथ में, राइट? ये इंसान को पता है कि यू एक्चुअली हैव अ म्यूचुअल फीलिंग्स फॉर देम, दे नो, दे कैन फील यू, दे कैन फील यू ब्रो, ठीक है? ये दिस पर्सन कैन फील यू, ठीक है? उनको पता है, दे जस्ट नो दैट यू फील द सेम वे, एक अफेक्शन है, ठीक है? और इनको भी पता है आपका भी उनके लिए अफेक्शन है, ठीक है? और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, राइट? आप दोनों के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन गैप है, आप आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो व्हाट यू फील फॉर ईच अदर, ठीक है? कहीं ना कहीं एक दिल में ही आप लोगों के फीलिंग्स हो सकते हैं, पर यू आर नॉट कंप्लीटली एक्सप्रेसिंग ईच अदर, यू पीपल नो ईच अदर अ लॉट, एक बिना बात कहे जो एक दूसरे को समझ जाए, ऐसी चीजें हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हो, जानते हो एक दूसरे को बहुत अच्छे से, एक ही सोल ट्राइब के हो आप लोग। मैं नहीं जाना चाहती सोलमेट और ये सब में, हमारे बहुत से सोलमेट होते हैं, ठीक है? बट टू ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि यू हैव म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, बट ओनली थिंग इज आप दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो एक दूसरे के लिए जो ट्रू फील करते हो, ठीक है? आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हो, बहुत अच्छे कंपेनियनशिप आप दोनों के बीच में है, एकदम बराबर हो आप लोग, ठीक है? बराबर, इक्वली पावरफुल पीपल, कोई ज्यादा कोई कम नहीं। आप लोग अगर, आई एम जस्ट सेइंग, अगर आप लोग करियर में भी या बिजनेस में भी पार्टनरशिप करते हो ना, इफ यू हैव दिस कंसेप्ट कि मैं अगर फ्यूचर में कुछ करूँ ऐसा कोई काम जहाँ पे मुझे पार्टनरशिप चाहिए, ये इंसान आपको एकदम काउंटर पार्ट वाली एनर्जी है, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान, जिसको बोलना नहीं होगा, वो बस उनको पता है। होता है ना, हमें कभी कभी कोई पार्टनर को बोलना पड़ता है कि दिस इज योर पार्ट एंड दिस इज, ये मेरा पार्ट है। सो इस इंसान के केस में ये नहीं, एकदम बराबर, इक्वल पावरफुल पीपल, when two equal powerful people, two equal people come come to each other, ठीक है? ऐसी ऐसी एनर्जी है, ठीक है? और इट इज अ डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, बिकॉज एंड दिस कनेक्शन इज वेरी हीलिंग, हो सकता है ये इंसान को भी आपके साथ होना बहुत हीलिंग लगता है, आपको भी लगता है, और हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपके साथ मिलने के बाद हीलिंग में आ गए हैं, हीलिंग जर्नी उनकी स्टार्ट हुई है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा, देयर इंटेंट,
ओके। आप जिस पर्सन के बारे में इंक्वायर कर रहे हो, इनका इंटेंट तो फिलहाल ये है कि ये करियर में बहुत फोकस्ड है, ठीक है? ये अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इनकम सोर्सेस और मे बी मल्टीपल इनकम सोर्सेस। बहुत काम कर रही है इंसान, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है? और ये इंसान के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता आजकल, ठीक है? क्योंकि करियर में और पैसे, फाइनेंशियल चीज़ों में ना वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है, ये आपका जो भी पर्सन है। और हो सकता है ये इंसान कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे वो, या ऐसा कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो वर्ल्ड वाइड लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और उस बिज़नेस में हो सकता है या उसके करियर में द पर्सन इज़ वेरी मच बिज़ी, उसको टाइम नहीं मिल रहा उतना। दिस पर्सन इज मैनेजिंग मल्टीपल थिंग, मल्टीटास्कर है, ये इंसान कर रहा है अभी मल्टीटास्किंग, टाइम नहीं मिलता उसको ज्यादा, बहुत कुछ कर रहा है, फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा चल भी रहा है उनका, बहुत सारी चीजें एक साथ, राइट? ओके। सो इस पर्सन का अभी का प्रायोरिटी है इनका फाइनेंसेस, इनका बिजनेस, राइट? ये इस पे उनका ज्यादा फोकस है अभी, कहीं ना कहीं कि वो इसको मैनेज करने में लगे पड़े हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। So Abhi, what I feel कि the energy between you and your person is Four of Swords. I feel you both are healing. ठीक है? Four of Swords talks about you both are healing. आप दोनों ने इस कनेक्शन को सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के ऊपर कि होना होगा, हो जाएगा, या आप दोनों का ही कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, आप उनसे हील हो रहे हो, एनर्जेटिकली यू पीपल आर हीलिंग, ठीक है? आप लोग, हो सकता है ये इस कनेक्शन को ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है आपने कि देखा जाएगा। आप, हो सकता है आप और ये दोनों ही इस कनेक्शन के ऊपर आप लोग रिफ्लेक्ट करते हो, सोचते हो कि कैसा था पास्ट में, क्या-क्या सीखा, जब टाइम बिताया था तो क्या-क्या अच्छा होता था। कभी-कभी कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी आती है, कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी आती हैं दोनों की लाइफ में, बट आई फील आप दोनों ने ही कहीं न कहीं, एक होता है ना कि यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया इस चीज़ को। यू बोथ आर हीलिंग योरसेल्फ। आप कुछ कुछ चीज़ों से हील तो आप लोग हो रहे हो, ठीक है? एक सरेंडर है इस कनेक्शन में। नाउ व्हाट यू डोंट सी। हुँ। अच्छा, इस पर्टिकुलर कनेक्शन में व्हाट यू डोंट सी अबाउट यू इज़ पाइल बी, आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद ट्रस्ट इश्यूज़ है, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज़ क्यों हैं? शायद आप लोगों को, अब यू पीपल आर नॉट श्योर वेदर ये पर्सन आप लोगों के लिए सेम फील करता है कि नहीं। ठीक है? अगर आप इस कनेक्शन को देख रहे हो, शायद ये हो सकता है कि आपको डाउट है कि ये इंसान आपके लिए उतना फ़ील करता है जितना आप कर रहे हो कि नहीं। ये भी हो सकता है कि पाइल भी, आप लोगों के एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हैं जो आपके थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है? और शायद बहुत लोग के लोगों के ओपिनियन से आपको हो सकता है चैलेंजिंग लग रहा है इस चीज़ को, ठीक है? I also feel many of you feel that there are a lot of competition, और आप लोगों को शायद कम फील हो रहा है। You might doubt your worthiness. आप लोगों को शायद अनवर्दी फील हो रहा है कि I don't deserve this connection, or maybe I'm not good enough for this person, right? Some kind of insecurity you people have, right? इसलिए आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है? बहुत लोगों को लग रहा है बहुत कंपटीशन है। मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ मुझे नहीं पता, तो मुझे रिजेक्ट नहीं होना है। एट द सेम टाइम आई आल्सो फील कि बहुत लोग आपके एनवायरनमेंट में हो सकता है जिन्होंने आपके देखने के, इस कनेक्शन को देखने के तरीके को इन्फ्लुएंस करा है। तो कहीं न कहीं आप लोगों को ना डाउट भी हो रहा है कि मैं अपने फीलिंग्स पे फोकस करूँ कि मैं इनकी सुनूँ। पर कहीं न कहीं अ, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, ठीक है? आप अपने आप को डिफेंड करते हुए मुझे दिख रहा है कि, एंड योर गाइडेंस इज पाइल बी,
Trust what your heart says. Follow your heart. Trust what your heart says. Follow your heart. Have faith. ये आपकी faith टेस्ट हो रही है. Have faith. ये जो भी आपको इनसिक्योरिटी हो रहा है, ये आपके दिमाग का क्रिएशन है. ठीक है, ये आपके दिमाग का क्रिएशन है. हो सकता है आप लोगों को फिजिकल सिचुएशन में उतना ज्यादा एविडेंस नहीं दिख रहा है. ठीक है, हो सकता है कम्युनिकेशन में नहीं हो, ये भी हो सकता है कि अच्छे से बात नहीं हो रही, अच्छे से मिलना नहीं हो रहा है, या वो सब बंद है, तो इसलिए अभी आप लोग अपने दिमाग में असम्पशंस बना रहे हो. ओके. या बहुत टाइम से शायद आप इनसे अलग हो, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत कंपटीशन हो सकता है इनके लाइफ में, ऑलरेडी मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ. बट दीज आर ऑल योर क्रिएशन इन योर माइंड. यू नीड टू हैव दैट फेथ. अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर काम करिए. अच्छा, इन द रिसेंट फ्यूचर आई सी नाइन ऑफ कप्स. आई सी पाइल बी. शायद आप लोगों में से बहुत लोगों के अंदर एक करेज होगी, एंड यू will initiate a contact, or you will get an opportunity to express your true feelings to them. ठीक है. अब मुझे ये आपके तरफ से ही आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपके तरफ से ही ये चीज जा रहा है इनके तरफ. ठीक है, द नाइट ऑफ कप्स. यू कुड, हो सकता है ऐसा कुछ सिचुएशन हो, आपको करेज मिल जाए कि नो मैटर व्हाट, मैं अपने दिमाग में कहानियां नहीं बनाऊंगा, बट आई विल एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स. हो सकता है ये करेज आप लोगों के अंदर आए. ठीक है, एंड यू पीपल विल बिकम सो मच श्योर अबाउट योर ओन फीलिंग्स कि आप और डिनाई नहीं करोगे, और आप एक करेज लेके, मुझे दिख रहा है कि एक उनको रीच आउट करने के बारे में सोच सकते हो. आई सी यू रीचिंग आउट टू देम विथ एन ऑफर. शायद एक ऑफर या प्रपोजल या कुछ लेके आप उनके पास जाओ, कन्फ्रंट करने आपके ट्रू फीलिंग्स को. राइट. हम्म. अच्छा, तो यहाँ पे क्या है पाइल बी, यहाँ पे आपके लिए एडवाइजेस क्या है. ठीक है, पाइल बी, अगर पास्ट में ये चीज, इस कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई थी, वो इसलिए नहीं हुआ था, इस इंसान ने आपको एक्चुअली रिजेक्ट करा था. फॉर मेनी ऑफ यू आई फील ये इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ योर ओन फियर. पाइल भी, आप लोगों को पता है कि नहीं, आई डोंट नो, बट यू हैव अ फियर ऑफ अबंडनमेंट. इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड. अबंडनमेंट फियर क्या होता है कि आई विल लीव यू बिफोर यू लीव मी. तो कहीं ना कहीं यू एक्ट इन अ डिफरेंट वे, या ये इंसान अगर कोई और बोलता है आपको, आप उसका कुछ अलग मीनिंग निकाल लेते हो कि ये इंसान हमें पसंद नहीं करता या प्यार नहीं करता. यू क्रिएट योर ओन स्टोरी. You feel like a victim, and it happens because of your own low self esteem. पायल भी, आई फील कि आपको अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करने की जरूरत है. आपका जो अबंडनमेंट ट्रॉमा है, अबंडनमेंट फियर है, इसके बारे में स्टडी कीजिए कि अबंडनमेंट फियर क्या होता है, कैसे फैमिली कंडीशनिंग से, कैसे बचपन में आपने फील करा है, जिससे आपने ये ट्रॉमा आप कैरी कर रहे हो. तो इससे क्या होता है ना, अबंडनमेंट ट्रॉमा ऐसा चीज है कि हम, हमारे दिमाग में ये मैसेज हम पिक करते हैं कि द पर्सन डज नॉट लव अस. हम ये परसीव करते हैं. राइट. बट रियलिटी कुछ अलग होता है. हो सकता है पायल भी, आप लोगों के केस में भी, यू पीपल आर अनश्योर. राइट, यू पीपल वेर in and out in from this connection because of this abandonment fear. ठीक है, कि आई लीव यू बिफोर यू लीव मी. तो पायल भी इस पे काम कीजिए, अदरवाइज छोटा कुछ चीज होगा, एंड इट विल ट्रिगर योर फियर, एंड यू विल एक्ट इन अ सिमिलर वे. You need to identify your trigger. You need to heal those trigger. You cannot act like a victim always. Nobody is victim. आप हर जगह पे victim act नहीं कर सकते. While be, you do not know that you play, आप कभी कभी अननोइंगली वुंडेड या विक्टिम रोल प्ले करते हो सिचुएशन में, और सामने वाले को दोष दे देते हो आपके डिफिकल्ट इमोशन के लिए, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. इट इज कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड. एंड एवरीबडी, आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में जाओ, एवरीबडी इज गोइंग टू ट्रिगर यू. आप भी ट्रिगर करते हो. ट्रिगरिंग इसलिए होती है क्योंकि आपके अंदर वुंडिंग है. सो पाइल बी, इवन इफ यू
रीच टू दैट पर्सन विद एन ऑफर, पर अगर एक हार्मोनियस कनेक्शन आप चाहते हो, आपको अपने ये अबंडनमेंट जो ट्रॉमा है इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रॉमा की वजह से यू एक्ट वेरी अनप्रिडिक्टेबल। आपके पर्सन को आप ऐसा एक सिग्नल देते हो कि यू आर नॉट रियली श्योर। एनर्जेटिकली आपके पर्सन को फील होता है कि यू आर डाइसी, यू आर अनश्योर अबाउट देम, राइट? यू एक्ट डिटैच्ड, उनको लगता है कि आप इन्वेस्टेड नहीं हो। शायद आपको बहुत अलोन टाइम चाहिए होता है, आप ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते। ओनली बिल्डिंग अ फिजिकल कनेक्शन is not enough. For many of you, this is a message. Just saying, पाइल बी, तो आपको अपने अबंडनमेंट ट्रॉमा पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? एंड आपके आपका एक लो सेल्फ एस्टीम है कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर वर्थ। आई डू नॉट डिजर्व देम, आई डू नॉट डिजर्व दिस कनेक्शन, आई एम अनवर्दी, और दे माइट चूज समवन एल्स। ये सारे थॉट्स कहीं से आते हैं पता है? बिकॉज डीप डाउन यू फील यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर अनवर्दी। तो इस अनवर्दीनेस को आपको हील करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो पाइल बी, आपके लिए ये भी है कि ओके, आपके लिए ये भी है कि गो स्लो, ओके, गो स्लो, और ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए। जो चीज ओवर थिंकिंग इज ओवर एनालाइजिंग द सिचुएशन, ठीक है? और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर ओवर थिंक कर रहे हो ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इट इज एक्चुअली कॉम्प्लिकेटिंग द सिचुएशन। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपके कमिटमेंट प्रॉब्लम पे वर्क कीजिए पाइल बी, ओके? अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को ये लगता है कि आई डू नॉट अर्न इनफ मनी, और आई डू नॉट हैव इनफ मटेरियल सक्सेस और स्टेटस, दैट मीन आई एम लेस वर्दी, एंड मैं इसको क्या ऑफर करूंगा या करूंगी, क्योंकि मैंने इतना अचीव नहीं किया है, मैंने इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास खुद का ये नहीं है, फलाना नहीं है। तो रिलेशनशिप डजंट वर्क लाइक दैट पाइल बी। You feel, you associate your worth with material success maybe, but this is not the measurement of your worth, ठीक है? ये ऐसा नहीं है। it tells you that you feel unworthy, you have low self esteem, इसीलिए आप materialistic achievement से अपने worth को डिसाइड करते हो। ये कभी ना कभी हमारे पास्ट के सफरिंग से आता है। शायद बचपन में आपने पैसे का थोड़ा सा स्ट्रगल एक्सपीरियंस करा होगा, या ऐसे करके बड़े हुए होंगे जहां से आपने आपको ये लगा कि आ, पैसे ही इंसान के वर्थ को डिसाइड करता है। मनी इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट इन दैट, बट ओनली बेस्ड ऑन योर मटेरियल अचीवमेंट, इट इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर इफ अदर पर्सन विल लव यू और नॉट। ये कभी भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है, ठीक है? सो पाइल बी, वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम, राइट? वर्क ऑन योर फियर ऑफ कमिटमेंट। क्यों ये फियर ऑफ कमिटमेंट है आपका? अबंडनमेंट ट्रॉमा से है। अबंडनमेंट ट्रॉमा के बारे में पढ़िए, या किसी हीलर के साथ अगर काम करना है वो कीजिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए। यू कैन बाय सम सेल्फ हेल्प बुक, राइट, टू हील योर इनर इनर चाइल्ड वुंड, राइट? ये है, आप लोगों को यहाँ पे काम करने की जरूरत है, ठीक है? ताकि आप एक ऐसे माइंडसेट से ऑपरेट ना करो। कोई भी रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस कभी ना कभी आते हैं, बट if you internalize that challenge within you and you give yourself that message that I'm not worthy, the person doesn't love me, they are not interested, and they will leave me, तो ये आपके रिलेशनशिप को सैबोटेज करता है। दिस इज योर सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न, I'll be. So work on those things, and I can see a possibility because this person feels the same. ठीक है? दिस पर्सन फील्स द सेम वे, पर खुद की हीलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ये रीडिंग का महत्व यही है कि इस रीडिंग में आपको बोला जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स का रीजन आपका जो वुंडिंग है उस पे काम करो, एंड डू नॉट इवन बॉदर अबाउट वेदर दैट पर्सन नीड्स टू हील समथिंग और नॉट। ये एनर्जी works like that. When you start healing yourself, no, your external reality changes. You will see that person's behavior will automatically change, or they will also start working on themselves,
right? आप खुद की responsibility लीजिए बस, right? And they will reciprocate. यही energy का law है. What is inside, that is outside, right? So you do that. I hope I'll be you got your answer. And if you like my video, if you liked the message, and if you uh, got benefited, like, share, and subscribe to my channel. Click the bell icon so that every time I upload a video, you get notified. And if you need personal services, you can reach out. The WhatsApp number is given in the description. And I'll see you next. Bye.